Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss what is AR-SN1 reaction, and this is our second lecture of aromatic nucleophilic substitution chapter. In previous lecture we have discussed what is aromatic nucleophilic substitution reactions and why aromatic nucleophilic substitution reactions are rare. Next, we have discussed what is the effect of substituent present on ring on the reactivity of reaction. After that, we have discussed that there are three types of reaction, that is ARS1, ARSN2 and nucleophilic substitution reaction via Benzyne mechanism. In this video lecture, we are going to discuss only and only first reaction, that is aromatic substitution nucleophilic unimolecular. So, what is this ARSN1? AR stands for aromatic. S stands for substitution. N stands for nucleophilic. And 1 stands for unimolecular. So basically ARSN1 reaction क्या है? Aromatic substitution nucleophilic reaction. So this type of reactions are very rare and generally given by diazonium salt. जनरली गिवन बाय डाइजोनियम सोल्ट्स. तो फर्स्टली हमने डिस्कस किया कि ARSN1 रिएक्शन है क्या? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर. इस टाइप की रिएक्शंस रेयर होती हैं और जनरली डाइजोनियम सोल्ट इस टाइप की रिएक्शन शो करता है. अदरवाइज नए कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जो इस टाइप की रिएक्शन शो करता है. एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन आपकी क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, this is a diazonium salt. When diazonium salt react with nucleophile, this nucleophile replace nitrogen and there is a bond formation between carbon and nucleophile take place. Nitrogen as the side group leaves. Okay, so what is the mechanism? रिएक्शन तो हमने देख ली कि जो एरोमेटिक डाइजोनियम सोल्ट है उसकी जब हम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना लेगा. अब हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा. जनरली ये जो मैकेनिज्म होता है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है. कितने स्टेप का मैकेनिज्म है? 2 स्टेप का मैकेनिज्म है. सो इन स्टेप नंबर firstly there is a bond breakage between carbon and nitrogen of diazonium salt. फर्स्टली क्या होगा? फर्स्ट स्टेप के अंदर जो एरोमेटिक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और जैसे ही बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो एक इंटरमीडिएट यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि क्या होगा? aryl cation. So the first step involves formation of aryl cation as an intermediate. One should remember that this first step is a slow step. फर्स्ट स्टेप कैसा है? स्लो स्टेप. और अगर ये स्लो स्टेप है तो ये क्या होगा? RDS. व्हाट इज दिस RDS? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इस रिएक्शन की जो रेट है वो फर्स्ट स्टेप ही डिटरमाइन करेगा, ना कि सेकेंड स्टेप. नाउ द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स combination between aryl cation formed and nucleophile, or we can say nucleophile attack on aryl cation formed. Then there is formation of the bond between nucleophile and carbon of the aromatic compounds. So this is the second step and the second step is a
फास्ट स्टेप। तो हमने बेसिकली क्या देखा कि मैकेनिज्म है क्या, मैकेनिज्म में क्या होगा। फर्स्टली जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड था उसकी कार्बन और डाइजोनियम सोल्ट की जो नाइट्रोजन है उसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी कंपाउंड में से, और फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो अराइल केटाइन इंटरमीडिएट बना है उसके ऊपर अटैक करेगा। अब देखिए आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हो कि हमने जब कार्बोकेटाइंस डिस्कस किया था लास्ट वाले सेमेस्टर में, तो हमने ये कहा था कि कार्बोकेटाइन अराइल कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल होते हैं। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इस पे पॉजिटिव चार्ज लिस्ट स्टेबल है, लेकिन फिर भी इस वाले स्टेप में ये इंटरमीडिएट बनता है, ऐसा क्यों? What is the reason behind this? So the reason behind this is that however this aryl cation formed is unstable, but this nitrogen gas formed as a side product is more and more stable, and which is the driving force for this reaction. नाइट्रोजन गैस जो निकली है, नाइट्रोजन गैस जो बनी है डायटोमिक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब देखिए जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, और इस रिएक्शन से जैसे ये निकल जाएगा तो आपको पता है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपकी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, और हमें करना क्या है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस बनता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, नाइट्रोजन ऐसे साइड प्रोडक्ट बनता है, ये क्या होगा, इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होगा। Now, what are the evidences in support of the AR-SN1 reactions? Evidence. अब हमें पढ़ना है कि कौन कौन से एविडेंसेज हैं जो AR-SN1 रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, जो AR-SN1 रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। क्यों भाई, क्योंकि जो रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है डाइजोनियम सोल्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए मैकेनिज्म से समझ में आएगा। मैकेनिज्म में क्या था, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप था और इसमें सिर्फ और सिर्फ डाइजोनियम सोल्ट इन्वॉल्व हुआ था। तो एविडेंस में हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शुड बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दिस इज फर्स्ट, नॉट फास्ट, फर्स्ट। ओके, क्यों भाई, क्योंकि रेट केवल और केवल डाइजोनियम सोल्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता ही नहीं है फर्स्ट वाले स्टेप में। नाउ द सेकेंड स्टेप इज दैट द फर्स्ट स्टेप इज रिवर्सिबल। फर्स्ट स्टेप इज रिवर्सिबल। हमने जब ये मैकेनिज्म किया था तब देखा भी था कि जो फर्स्ट वाला स्टेप है ये रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल होता है, इसका क्या एविडेंस है, एविडेंस अभी पता चलेगा, देखते हैं। ये आपके पास एक कंपाउंड है, डाइजोनियम सोल्ट है। अब हमने क्या किया, इस वाले नाइट्रोजन को लेबल कर दिया कि इस नाइट्रोजन को इसके आइसोमर आइसोटोप 15 N15 से रिप्लेस कर दिया। तो हमने देखा कि जब ये कंपाउंड आपका ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद दोबारा से रिफॉर्मेशन होती है डाइजोनियम सोल्ट की, तब आपको कुछ इस टाइप का भी कंपाउंड मिलता है। ये कंपाउंड आपको मिलेगा तो इसका मतलब क्या है भाई, कि ये कंपाउंड तब मिल सकता है, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, नाइट्रोजन लेबल्ड वाली नहीं है, नॉन लेबल्ड है। तो ये नाइट्रोजन बॉन्ड कब बना सकती है, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। मीन्स जो लेबल्ड नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, तभी तो नॉन लेबल्ड नाइट्रोजन कार्बन से बॉन्ड बनाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिवर्सिबल। नाउ द सेकेंड स्टेप इज, थर्ड एविडेंस इज
that electron releasing group increase the rate of reaction while electron withdrawing group decrease the rate of reaction. Why this happens? Because you know, in ArSN1 reaction, the intermediate formed is a cation, aryl cation, और cation means इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीसीज इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा, तो इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करवाएगा. तो ये थर्ड एविडेंस है. इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है? रिएक्शन की रेट को इन्हांस करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज करता है. अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ArSN1 रिएक्शन के लिए. एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास डाइजोनियम सोल्ट है. जब आप इस डाइजोनियम सोल्ट के रिएक्शन करते हो वाटर के साथ, तो वाटर क्या करेगा भाई? हाइड्रोलाइज कर देगा डाइजोनियम सोल्ट का, और हाइड्रोलिसिस के बाद आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा? फिनोल. साथ में नाइट्रोजन गैस लीव करेगी. ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हो कि आपने किसी भी हैलाइड के साथ रिएक्शन कर दी इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, then there is formation of halobenzene plus nitrogen. If you react diazonium salt with azide, then there is formation of azide derivative of benzene. This is N3, azide derivative of benzene. If you react this compound with methanol, then you will get methoxybenzene. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं रिएक्शंस के जिसमें एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, जिसमें डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन की हमने वाटर के साथ, हैलाइड्स के साथ, अजाइड्स के साथ और मिथेनॉल के साथ. ओके, आई होप आपको ArSN1 रिएक्शन समझ में आ गई होगी.